Hello students. So in previous video I have explained about the parallel plate capacitor. Okay. So today I will be explaining derivation of the parallel plate capacitor. That means here I find out the name capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor. ठीक है capacitance. अब देखिए capacitance find out करने के लिए formula C is equal to Q upon V. Capacitance find out करना पड़ेगा. Capacitance of any conductor. Capacitance C is equal to Q upon V. ठीक. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे लेने? दो प्लेट्स लेना पड़ेगा. एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज. लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए. ठीक है. पॉजिटिव प्लेट में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट में भी उतना चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज. मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस. दिस क्लियर? या नाउ यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? So electric this concept I have explained in the second chapter. In second chapter you can see two plates. One is the positive and दूसरा negative plate है. ठीक है. अभी ये दोनों का between हमने देखा था E is equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon naught, and outside E is equal to sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. In second chapter I have explained that is the Gauss theorem. Gauss theorem में हम application देखा था. Applications of Gauss theorem. Two parallel means two sheets. दोनों sheets को parallel में रखेंगे तो पॉजिटिव एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर? या. Now in between हम फाइंड आउट किया था एंड आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट प्लेट एंड आउटसाइड ऑफ द सेकंड प्लेट. उसमें हम तीन फॉर्मूले आप लोगों को दिया होगा, देख लेना एक बार रिवाइज कर लेना. सेकंड चैप्टर में या तो टू प्लेट्स का दो केस हम एक्सप्लेन किया था. एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन का एंड दूसरा दोनों का पॉजिटिव का एक्सप्लेन किया हुआ. ठीक, अब देख लेना. अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव केस हो तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आएगा E is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2, that is upon 2 epsilon naught. That's inside. And outside sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. This is outside of the first plate. And outside of the second plate भी उतना आया हुआ. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को एक स्पेशल केस एक्सप्लेन किया था. One special case I have explained. What is the special case means over there? Sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to हमने वहाँ का sigma. पहले आप देख लेना हम अलग अलग लिया होगा सिग्मा 1 और सिग्मा. आखिरी में हम एक केस भी हमने यूज किया होगा. इफ बोथ द चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल होगा तो क्या होगा? इसमें सब सीधा सीधा बराबर है. सो फ्रॉम दिस बोथ द चार्जेस आर इक्वल मींस वन इज प्लस q, सेकंड वन इज माइनस q. चार्ज डेंसिटीज ऑन द बोथ द प्लेट्स विल बी इक्वल. ओके, ऑन द फर्स्ट प्लेट प्लस सिग्मा एंड नेक्स्ट प्लेट that is minus sigma. both the charges are equal means here charge densities भी बराबर होगा. ठीक है. इसमें अलग अलग चार्जेस नहीं, दोनों का सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड होगा. इसी वजह से दोनों का एक कंडीशन दैट इज sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma. ठीक. अब ये केस यूज करेगा तो मिडिल में आया होगा. दैट मींस इन बिटवीन मिडिल में से इन बिटवीन द प्लेट्स आया होगा sigma 1 epsilon naught. अब देखिए ना एक केस अब सेकंड चैप्टर में देख जाके रिवाइज कर लेना. इन बिटवीन. Okay, after applying the A case, in the case of the special case of the x of A, E is equal to sigma upon epsilon naught. And इसी तरह आया होगा 0 and इसी तरह भी आया होगा 0. ठीक, इसी तरह okay, outside of the first plate and outside of the second plate. Okay, दोनों 0 आया होगा. देख लेना, अब देख लेना, अब जाके एक बार रिवाइज कर लेना सेकंड चैप्टर में A और A 0 and in between आया होगा sigma upon epsilon naught. Sigma upon epsilon naught. That's why I am saying here. You are preparing the previous chapters, then only you can understand. Okay, simply I am explaining this. Suppose if any student is not prepared the Gauss theorem applications, if I am explaining this concept means that they can't understand. First of all, you have to prepare the previous concept, then only you can understand easily. Clear? Yeah. Now listen. These both plates are separated by a distance, that is the small d.
and electric field outside of the plates 0. Already the electric field means this side also 0 and this side also 0, but only in between will be. In between means as a confined energy is confined. Energy confined over the purchase you can use that energy. Clear? Yeah. Now the electric field inside E in between the plates and the between distance small d and potential difference between them d. Potential difference between them d. अब ये थर्ड चैप्टर में फॉर्मूला आपको देखो E is equal to minus dV upon dr. थर्ड चैप्टर में आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया हुआ है E is equal to minus dV upon dr. That is the relation between electric field E and potential. So you can write here E is equal to V by d. Okay, this is the formula from the third chapter. E is equal to V by d. Now from this V is equal to dD. V is equal to what again? V is equal to E where in between the plates. In between the plates means E where E is equal to sigma upon epsilon naught. E is equal to sigma upon epsilon naught. E is equal to sigma upon epsilon naught. That is the in between the plates. Clear? So sigma upon epsilon naught will come. And what is the sigma? Sigma is the charge density. Charge density for unit area. One unit area में sigma is the charge. And पूरा area A हो तो हम total charge कितना हुआ sigma A. Sigma A is the total charge. Total charge means that sigma A is equal to x by q. What is the total charge of q? किसको बराबर है? Q को बराबर है. ठीक? From this sigma A is equal to q1. From this we can say sigma is equal to q upon A. Sigma is equal to q upon A. What is the sigma? Sigma is the charge density for unit area. लेकिन हम मान रहे हैं पूरा हमारे पास पूरा एरिया कैपिटल ए. अब कैपिटल एरिया में कितना चार्ज होगा? सिग्मा मल्टीप्लस ए. सिग्मा मल्टीप्लस ए किसको बराबर है? टोटल चार्ज. टोटल चार्ज मींस डोंट थिंक दैट दोनों को ऐड करना है. टोटल चार्ज कैपेसिटेंस में हमेशा लेना पड़ेगा. पॉजिटिव प्लेट में कितना चार्ज होगा उसको हम मानेंगे टोटल चार्ज. टोटल चार्ज क्यू मान. ठीक है. एंड सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू. देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. और इधर सिग्मा वैल्यू क्यू अपॉन ए रिप्लेस करें तो Q upon A रिप्लेस करें तो Q upon epsilon naught आएगा. E वैल्यू. This is the E वैल्यू. ठीक. लेकिन हम क्या फाइंड आउट करें? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले V चाहिए. और V कैसे लिखना? V is equal to इसमें से फॉर्मूला E how much the E value? Q upon A epsilon naught multiplies V. This is the V value. V is equal to E वैल्यू हमको मिला. That is Q upon A epsilon naught multiplies V. अब क्या चाहिए? कैपेसिटेंस C is equal to Q upon V. That means that QD upon A epsilon naught. Now C is equal to Q multiplies A epsilon naught upon QD. Reciprocal. अब Q get cancel. C is equal to A epsilon naught upon D. A epsilon upon D. ठीक है. This is the capacitance. इसको C naught भी लिख सकते हैं. C naught. Capacitance of the parallel plate capacitor. Capacitance of the parallel plate capacitor C naught is equal to A epsilon naught upon D. So here why I have written here C naught means here. That means here whenever I write here epsilon naught, otherwise C naught. Okay, what is the meaning of this statement means here? Between the parallel plates. Okay, between the parallel plate only vacuum नहीं तो एक होगा. ठीक है. Between the parallel plates अब क्या भरा होगा? एयर भरा होगा नहीं तो वैक्यूम होगा. ठीक है. That is the meaning. ठीक है. But my point here, if I am writing the epsilon naught means here between the parallel plates air is filled. Okay, between the plates air is filled. That is the meaning. उसी केस में क्या लिखते हैं? C naught is equal to A epsilon naught upon D. This is the formula. ठीक. अब इसमें एक और केस हमने इसमें क्या बोला था? इसमें क्या बोला था? ये हमने माना था in between क्या बोला है? A ना in between A. Okay. ठीक है. और इसमें एक और केस है. एक और केस में से you don't need to worry. ऑलरेडी एक फॉर्मूला निकाला था ना. इससे इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेगा तो फॉर्मूला है. ठीक है. And what is the second case also? Capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor
but space between them, space between parallel plates completely filled with dielectric material. Okay, completely the dielectric material. No? Now this. These are the plates. This is the plus Q and this is the minus Q. पहले केस में in between them only what was there, only air was there. Now we are currently in between them as like completely without any gap हम क्या करेंगे dielectric material इस तरह से insulator इसी केस में मैंने क्या रखा था insulator और इसको बोल सकते हैं dielectric material insulator अदर से कैंसिल है dielectric. इसी केस में क्या होगा कुछ नहीं होगा फॉर्मूला ऑफ एक्सप्रेस C इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा मींस से कुछ तो होगा ठीक है. अब फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट ए है. अब ए एप्सिलॉन ठीक है फ्री स्पेस में तो ए होगा तो क्या हमने लिखा था a मल्टीप्लाई एप्सिलॉन. अब इधर एक मटेरियल रखा था मटेरियल लगेगा तो क्या है कि a एप्सिलॉन अपॉन d ठीक है. अब C इज इक्वल टू here in first chapter I explained relation between the epsilon and epsilon naught. Epsilon is equal to some k multiplies epsilon naught. So therefore you can write a multiplies epsilon is having k epsilon naught upon d. This is the formula. Okay, this is the formula. But after inserting the dielectric material क्या होगा ठीक है. After inserting the dielectric material क्या होगा अब देखना कहता है तो C is equal to और इंसर्टिंग द डायरेक्ट मटेरियल C is equal to हमको आया था इसको आप ऐसे भी लिखते K मल्टीप्लाइज A एप्सिलॉन अपॉन D लिख सकते हैं ठीक है. जैसे फॉर्मूला को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं लेकिन A एप्सिलॉन अपॉन D इसको बराबर तो C नॉट. देयरफॉर C is equal to some K मल्टीप्लाइज C नॉट. फिर K इज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मल्टीप्लाइज C नॉट ठीक है. पहले से अभी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है कितना टाइम्स k टाइम्स ठीक है. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा उतना टाइम्स a बढ़ेगा. you got my point ठीक है. that means whenever you keep the any dielectric material उसी केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. कितना इंक्रीज होगा मींस k टाइम्स ऑफ C naught k times of C naught. Therefore C is equal to k multiplies C naught. Okay, so that is the difference between air and any insulator. Okay, air put kare to a formula and insulator person is directly made put kare to formula a. But what is the relation between this C and C naught means पहले से अब k times ज़्यादा increase हो रही. What is the k means that is the dielectric constant. Okay, dielectric constant. This is about the parallel capacitor का derivation. अब इसको देख के बता सकते हैं किस पे डिपेंड करेगा. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये डिपेंड करेंगे किस पे साइज मींस एरिया ऑफ प्लेट में कैसे डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा और उसके बाद एक के पे डिपेंड करेंगे कोई मींस अलग-अलग इंसुलेटर्स के लिए के वैल्यू अलग-अलग हो सकता है ठीक है. कौन सा डायरेक्ट मटेरियल का के वैल्यू ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा. And what's the relation between C and D inversely proportional. Okay, between the plates separation ज्यादा होगा तो so automatically क्या होगा कैपेसिटेंस कम होगा. And we are bringing very closer to each other. In this case what will happen, so capacitance will be increases. Okay, sometimes they ask how to increase the capacitance of parallel capacitor. In this case you have to explain by increasing the size of the plate, otherwise to decrease the separation between the plates. Okay, and depending on dielectric constant also. Dielectric constant increase करेगा तो capacitance भी increase होगा. Okay, this is about the
पहले प्लेट के पास डेरिवेशन एंड ए कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करें। लेकिन पहले वीडियो में आप लोग एक्सप्लेन किया था, इट विल नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, इट विल नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। यू गॉट माय पॉइंट। अब देखिए ना, ऐसे कोई सा भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकाल के देख लेना, ये डिपेंड नहीं करेंगे Q और V पे, लेकिन ये डिपेंड करेंगे साइज पे डिपेंड करेंगे, क्लियर, साइज, शेप एंड मटेरियल पे डिपेंड करेंगे। ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक। सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट हमने बताया था व्हाट इज द कैपेसिटर मींस इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टोर करेंगे, कितना स्टोर करेंगे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। सो हमने बताया था पहले लेक्चर पहले वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करेंगे, ये स्टोर करें, लेकिन कितना स्टोर करेंगे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। उससे के लिए आप क्या करेंगे, एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी इन द कैपेसिटर। So plus Q and minus this is a parallel plate capacitor means one plate हम मानना पड़ेगा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हमने लिया था, ठीक है। both the charges should be equal magnitude wise, so Q and Q and इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू, ठीक। इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो वो हम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब देखना, पहले अब देखेगा तो ऐसा 2 प्लेट्स हमने लिया, ठीक है, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव। इसका मतलब हम ऐसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हम इसी प्लेट से चार्ज को तोड़ के हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। सपोज मान लेना यहाँ से DQ चार्ज को क्या कहता है, इसी प्लेट से तोड़ के इसी प्लेट पे हम लाए, इसी क्या कहता है, इसी प्लेट से हम तोड़ के इसी प्लेट में लाए, विच चार्ज दे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, सो ऑटोमेटिकली इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। गॉट माय पॉइंट। हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट एंड सेकंड प्लेट से हम क्या करेंगे, थोड़ा चार्ज को तोड़ के कहाँ पर ला रहे हैं, पहले प्लेट में कौन सा चार्ज ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेट से यहाँ ला रहे हैं। दैट मींस कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा उतना नेगेटिव चार्ज इसी प्लेट में इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये तो प्लस Q माइनस Q। अब देखना ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे एक टाइम है, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे तोड़ के चार्ज को तोड़ के दूसरा प्लेट से पहले प्लेट में लाए, ऐसे लाए ऐसे एक टाइम आता है, इसमें प्लस Q प्लस स्मॉल q, इसमें माइनस Q, ठीक। इससे केस में पोटेंशियल डिफरेंस करता है, नॉर्मल वन को Q is equal to C देना, Q is equal to C को मतलब V is equal to क्या रखते हैं, Q upon C, ये ना प्रॉब्लम ऐसे भी कैसे करना, नॉर्मली Q is equal to what वैसे करें, Q is equal to C भी होगा तो Q is equal to C भी होगा तो उनका कैसे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल is equal to Q upon C, ये फॉर्म पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक। लेकिन हम पूरा कितना चार्ज को लाना है, इसको धीरे धीरे तोड़ के बड़ा Q लाना है, लेकिन बड़ा Q नहीं होगा, अभी होगा केवल छोटा Q। दैट मींस हम थोड़ा और चार्ज को सेकंड प्लेट से तोड़ के पहले प्लेट में, पॉजिटिव चार्ज को तोड़ के पहले प्लेट में लाना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसी केस में आप देखिए तो हम ऐसे DQ ला रहे हैं, तोड़ के DQ ला रहे हैं, इसी केस में ऐसे केस है तो इसको पोटेंशियल मान लेना V डैश, पोटेंशियल इज V डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q अपॉन C। लेकिन अभी इसी टाइम पे Q क्या था, स्मॉल q अपॉन C, V dash is equal to Q upon C। गॉट माय पॉइंट, V dash is equal to Q upon C, ठीक। अब देख लेना ये, अब मान लेना थोड़ा चार्ज को
थोड़ा चार्ज को तोड़ के पहले प्लेट से दूसरा प्लेट लाने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कुछ कार्य कराना पड़ेगा, ठीक है, सो वी हैव टू डू द सम वर्क, ठीक है। व्हाट इज द वर्क को हम वर्क इज इक्वल टू पावर चैप्टर में एक्सप्लेन करके देखो, वर्क डन इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइज q, वर्क डन इज इक्वल टू रेस्पेक्ट टू द पोटेंशियल, पावर चैप्टर में देख लेना, वर्क डन इज इक्वल टू vq, अदरवाइज पोटेंशियल v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन q लिखा होगा, ठीक ये ना, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए पहले एक प्लेट से दूसरा प्लेट पर कहता है वर्क वी आर डूइंग दैट एम्बेड, मान लो सपोज हम काम कर रहे हैं dw, ठीक है, सो q तोड़ के d को तोड़ के इसी प्लेट से इसी प्लेट में लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, इज इक्वल टू dw मल्टीप्लाइज d, v कितना हमने मान लिया था v डैश, सो v डैश, ठीक है, इसमें ऐसे केस में कुछ वर्क डन dw इज इक्वल टू, ठीक है, d को चार्ज को तोड़ के इसी प्लेट में हम ला रहे धीरे धीरे ला रहे, अब d को लाने के लिए कितना कार्य कराना पड़ेगा, dw इज इक्वल टू v मींस दैट v डैश मान लेना, एंड q कितना चार्ज को ला रहे, d को चार्ज को ला रहे, d को चार्ज को अप ला रहे, d को चार्ज को अप ला रहे। अब नाउ क्या वर्क डन dw इज इक्वल टू v डैश में लिखते हैं q by c, v डैश में लिखते हैं q by c into d, दिस इज व्हाट हम d को चार्ज को तोड़ के एक प्लेट से दूसरा प्लेट में लाने के लिए इतना वर्क किया था, लेकिन पूरा कितना चार्ज लाना चाहिए, प्लस q, बड़ा q लाना चाहिए, तो इसके लिए टोटल इतना चार्ज लाने के लिए अब टोटल वर्क कितना करना है, ये फाइंड करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए वो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है, चार्ज को धीरे धीरे तोड़ के ला रहे हैं, चार्ज वेरिएबल, ओके, नाउ वी गेट 1/c को आउटसाइड आप लिख सकते हैं, अब q dq, इसको अपने q dq, लेकिन लिमिट्स कहां से कहां तक, पहले कुछ भी नहीं था, अब देखना पहले ऐसे न्यूट्रल था, पहले कुछ भी नहीं था, दैट मींस 0 से पहले इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, d को छोटा एलिमेंट को तोड़ के धीरे धीरे ला रहे हैं, ओके, ऐसे ला रहे कब तक लाने हैं, मीन्स ये प्लस बड़ा क्यू होना चाहिए, तब तक आप चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक। अब लिमिट्स का आंसर करना है 0 से बड़ा क्यू इज द लिमिट्स। नाउ इसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे, इंटीग्रल x over n dx is equal to x over n plus 1 upon n plus 1 I can clear, integral x over n dx is equal to like this, now this is integral x dx का over from x square by 2, ठीक है, इसमें से आप लिख सकते टोटल वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज 1/c, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो q स्क्वायर by 2, अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से बड़ा q, अब लिमिट्स करने के बाद टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ये आएगा, अपर लिमिट 1/c, अपर लिमिट इज द q स्क्वायर by 2, तो लिमिट 0, देन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू q square by 2c, otherwise half q square by c, this is the work done, इतना है, नहीं तो इसको ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, मॉडिफाई कैसे लिख, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू q is equal to c वाला टाइप पता है, q is equal to c वाला टाइप पता है ना, q की जगह में तो 1/2, q की जगह में c लिख सकते c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, 1c कैंसिल, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 c स्क्वायर। This is the energy and capacitor. This much energy will be stored in the case of the parallel plate capacitor. Not only parallel plate capacitor, the shape can be any, but doesn't matter. But the thing is total work done in this case, that is half CV square. Otherwise, you can half Q square by C.